Ye Jawani Hai Diwani did impact a lot of people, did impact a whole generation, and it did impact me as well. I wanted to be like Bunny, I wanted to travel like him, I wanted to see every other corner of the world like him. And I had this dream when I was 13. And finally 10 साल बाद 23 साल की उम्र से मैंने ये स्टार्ट किया. इंडिया में तो मैं घूम चुका था थोड़ा बहुत, अभी जाना था बाहर. और बाहर कहाँ गया? वियतनाम. इसके पहले भी मैं बाहर जा चुका हूँ. आई वॉज इन फ्रांस फॉर 7 months. But that was not a trip, that was more like a study trip. So this was my first vacation, international trip. And it was really good. अगर आपने अभी तक के vlogs नहीं देखे हैं तो I will highly recommend you to watch the other vlogs where I have covered Hanoi, Hoi An and all. And now I will be covering Bana Hills and Da Nang. So stay tuned and enjoy the ride. So hey guys, a very good morning from Da Nang, our second day in Da Nang and the last day in Vietnam. So it was a great trip till now. Let's see how Bana Hill goes. और आज हम अभी निकलने वाले हैं बाना हिल्स के लिए. दिस इज़ माई आउटफिट एंड दिस इज हिज एंड वी आर thoroughly excited for the बाना हिल्स बिकॉज जैसे हलोंग में एक मेन अट्रैक्शन था वैसे ही बाना हिल भी एक मेन अट्रैक्शन है. रिसेप्शन से हमको कॉल नहीं आया है. कॉल आता है तो हम नीचे जाएंगे एंड नीचे जाके फिर हमारा जो लगेज है वी विल कीप दैट इन द लॉबी. एक अच्छा फैसिलिटी है कि यहाँ पे अगर आपको घूमना है तो यू कैन कीप योर लगेजेस इन द रिसेप्शन लाइक लॉबी एरिया एंड दे विल लुक आफ्टर फॉर दैट फॉर यू बिकॉज ये ऐसा है यहाँ का. मतलब ये लोग हर लोग ही करते हैं. हर कोई होटल में करता है. ये ऐसा नहीं है कि यही वाले होटल में हो रहा है. और आई विल जस्ट क्विकली गिव यू अ होटल लाइक रूम टूर. दिस वाज अमेजिंग. दिस वाज आवर स्टे फॉर 1 night and 2 days you can say and it was amazing. I will just show you. So ये था हमारा रूम. दिस वाज द बेड. इट वाज वेरी बिग साइज बेड. लाइक कोई दिक्कत नहीं हुआ. देयर वाज अ मिरर. टीवी था. टीवी हमने यूज़ नहीं किया. केटल था इलेक्ट्रिक. एवरीथिंग वाज देयर. ये अलमीरा है. यू कैन सी यहाँ पे 2 कंपार्टमेंट्स हैं. यहाँ पे एक और इधर भी एक. सो इट्स गुड. एसी ऑब्वियसली था एंड देन द बेस्ट पार्ट बाथरूम था. बाथटब था बट हमने यूज़ नहीं किया एंड यस इट वाज इट. और यहाँ पे हेयर ड्रायर हर एक होटल में ही होता है. सो इट वाज नॉट समथिंग कि इसी में था एंड इट वाज गुड. इट वाज अ लवली स्टे. एंड शोंगकोलुन, डू यू हैव एनीथिंग टू से अबाउट द रूम? It's better than the one we had in Hanoi. यस. हनोई से अच्छा ही था सब कुछ ही यहाँ पे. लाइक Weather. वेदर, टूर, होटल रूम. फूड इज बेटर इन हनोई. This is what I was talking about. यहाँ पे ऐसे लगेज रख के आप रूम घूम सकते हैं. तो चेकआउट प्रोसीजर इज़ डन. और ये अभी रोज़ का सीन हो गया कि टूर गाइड लेट है. सो ही विल कम बाई 8. इट इज़ 7:45 नाउ. सो वी हैव बीन आस्क्ड टू वेट. सो to our last day in Vietnam and Da Nang. I hope everything goes fine and well and we just have too much fun so that you can also see कि क्या क्या कर सकते हैं बाना हिल्स में जाके. ये वाला है हमारा गाइड. You can see that is our bus. जो दूर खड़ा है. So finally, our bus journey started towards the Bana Hills. It was a smooth ride, and our guide was really friendly, and he guided us really well. He also informed us a lot about the Bana Hills. So just listen to him, what he has to say. Good morning, everyone. Welcome. Yeah. Okay, so warmly welcome you to visit Bana Hills with us today. So now we are going to see the very beautiful mountain in Da Nang City. From your hotels, we use our lovely bus to go to the bottom of the mountain, and then after that we change to use special transportation called the cable car to visit the mountain. We are very happy to be the crew who will take you to see beautiful places today in the mountain. I will be your tour guide. My name is Thin. Thinh. Thin. It looks like think. I think
you drop the letter K at the end and put the letter H, so it becomes like pen. Yeah, thank you. And here is our driver, Mr. Huang, Hoang, Huang. We can say hello to him. Good morning. Hello. Do you want him to stand up? No. No? Okay. he just said no, he's driving. Okay, thank you. So as I talked to you, we are using the bus to go to the bottom of the mountain. It takes around 40 minutes because Bana is outside of Da Nang city in the mountainous area. After that, when we arrive at the bottom of Bana Hills, we change to use special transportation called the cable car. And today the cable car is taking us crossing about 5 kilometers in the jungle. Actually today you will have a chance to move on the one line longest cable car in the world, crossing the mountainous area, exactly 5.4 kilometers. You will be in the cable car for about 20 minutes. So this is a very good chance for us to enjoy the beautiful landscape from the cable car. This was our last day in Vietnam and we wanted to enjoy as much as we can. And जो नज़ारे थे, जैसा दिन था, वाइब बहुत अच्छा आ रहा था कि हाँ आज दिन अच्छा जाएगा. And no wonder it turned out to be a really memorable one. We were really excited to see the Golden Hanging Bridge, the Lunar Castle and everything, the Alpine Coaster, and also the cable ride which was 20 minutes long. So just stay tuned and see what all we did on Bana Hills. तो अभी हम आ चुके हैं बाना हिल्स एंड पीछे जो आप देख पा रहे हैं जो माउंटेन, यही बाना हिल्स है. बा मतलब मदर और ना मतलब माउंटेन, तो मदर ऑफ द माउंटेन जैसे कि हमारे टूर गाइड ने बताया. तो बाना हिल्स में हम जाएंगे रोप पे लेके एंड द रोप पे होने वाला है 20 मिनट का, 20 मिनट लॉन्ग जर्नी होगा रोप वे में. एंड आई थिंक इट विल बी अ लवली जर्नी. एंड बाना उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, देखने के लिए. तो आई एम वेरी मच एक्साइटेड. लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड यू विल बी एबल टू सी एवरीथिंग विदाउट इवन कमिंग हियर थ्रू माय व्लॉग. सो कीप वॉचिंग इट. और ये आसमानों की ऊंचाइयों में यस. It's too much crowd, too much, overly crowded. And as you can see, the Golden Bridge.
तो अभी तक हमने बहुत कुछ कवर कर लिया, आपने भी बहुत कुछ देख लिया। ये वाला एक चेस बोर्ड है, तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये फ्लावर गार्डन है। यहाँ पे लोग पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं, नए नए पोज बना रहे हैं। और अभी सूरज तो है बट क्लाउडी भी है थोड़ा वेदर, तो पता नहीं बारिश भी हो सकती है। एंड लेट्स सी, बट सो फार सो गुड, अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है बाना हिल्स का टूर। सो नाउ वी आर एंटरिंग द मेज गार्डन। मैं इस रास्ते से आया हूँ, वो उस रास्ते से गया। अजीब लग रहा है थोड़ा। चलो देखते हैं ढूंढ पाते हैं कि नहीं। इधर तो नहीं है, शायद निकल गया वो। इधर बैठने की भी जगह है। वाह, हमको मिल चुका है। मैं तो घूम घूम के आया, लेकिन फाइनली मिल चुका। हमने एक्चुअली ट्रिक इस्तेमाल किया थोड़ा। मैंने इसको आवाज़ आया तो इसने आवाज़ दिया तो मैं चला आया। फाइनली ये बाहर ही। तो अभी हम आए हुए हैं फ्रेंच विलेज, और यहाँ पे पहले फ्रेंच कॉलोनियल जब राज था तो यहाँ पे उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ था। फिर वो जब चले गए तो वियतनामीज़ गवर्नमेंट ने सब कुछ तोड़ दिया फ्रेंच का जो भी बनाया हुआ था, क्योंकि उनको डर था कि वो फिर से ना आ जाए, इसीलिए। और उसके बाद उन्होंने ये वाला ऐसे डेवलप कर दिया। एंड इट्स ब्यूटीफुल। यहाँ पे लूनर कैसल है, अल्पाइन कोस्टर है, बहुत सारे राइड्स हैं, और अच्छा तो है ही। लाइक इट्स ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। इफ़ यू कम टू दनांग यू शुड विजिट इट, लाइक इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस। यू शुडंट skip the Bana Hills because a lot of people, I heard from them कि they are skipping it, but you shouldn't. It's my advice कि आपको यहाँ पे आना ही चाहिए। So तो शंकर अभी भी अल्पाइन कोस्टर करके आया है, तो उससे ही पूछे थे उसको कैसा लगा। हाउ वाज एक्सपीरियंस? रियली बहुत 17,000 डोंग ले रहे हैं उसके लिए। पहले 2 साल पहले तक ये फ्री था, अभी फ्री नहीं है। और वो बोल रहे हैं कि बहुत ही अच्छा है। आप लोग देख भी पा रहे हो, वीडियो मैंने किया हुआ है। और ट्रैक थोड़ा सा लंबा था, ज़्यादा लंबा तो था नहीं, 2-3 मिनट का ही होगा, ज़्यादा तो नहीं था। यहाँ पे रॉक क्लाइंबिंग है। सो दिस इज़ दी वियतनामीज कुजीन रेस्टोरेंट ऑफ बाना हिल्स। ये हमारे टिकट प्राइस में इंक्लूडेड था, दैट्स वाई वी ऑप्टेड फॉर दिस। दिस हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ कुजीन्स, एंड इफ़ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन, इफ़ यू लाइक यू नो कॉन्टिनेंटल फूड, देन दिस इज़ गोइंग टू बी अ पैराडाइज फॉर यू। मतलब बहुत कुछ खाने को मिलेगा, बहुत कुछ। एंड इफ़ यू आर वेज देन आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि वेज में ऑप्शंस लिमिटेड है, बहुत ही कम है। सलाड्स हैं, फ्रूट्स हैं, डिज़र्ट्स हैं, एंड देन अगेन
you will have some pasta, some noodles, and these are the main options that you can have. But if you are a non-vegetarian, you will have a feast here. तो अभी हमारा लंच हो गया है। हमने किया था वियतनामी रेस्टोरेंट में बफे, और ये इंक्लूडेड था टिकट प्राइस में। और दूसरा ऑप्शन भी है कि आप टिकट प्राइस के साथ इंक्लूड नहीं भी कर सकते हो। टिकट के प्राइस में इंक्लूडेड रहता है जो टिकट आपको पहले मिलता है, जिसके थ्रू आप केबल कार होके ऊपर आते हो बाना हिल्स तक, उसी में इंक्लूडेड होता है। और अगर आपको ऐसा करना है कि नहीं लेना है तो वो टिकट अलग होता है, उसका दाम थोड़ा कम होता है। अभी हम जा रहे हैं कोई एक कैसल देखने, पता नहीं मेरे को एग्जैक्ट नाम, बट कैसल है ये इतना पता है। एक अच्छा खासा छोटा डिज्नीलैंड बना के रखा है इन्होंने अपना यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत तेज़ हवा चल रही है, बहुत तेज़। वेदर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। और ये रहा कासल। जैसे मैं बोल रहा था कि कोई कैसल है, मुझे नाम नहीं पता, तो इसका नाम है लूनर कैसल। इट लुक्स रियली ब्यूटीफुल। इन्होंने पहाड़ के अंदर इतना सब बना रखा है, पहाड़ के अंदर अम्यूज़मेंट पार्क बना रखा है, पहाड़ के अंदर कैसल बना रखा है, रियली नाइस टू सी। और ऐसा कहीं और है कि नहीं मेरे को पता नहीं, मेरे को लगता नहीं है ऐसा कहीं और होगा भी। इट्स ब्यूटीफुल। दे आर रियली वर्किंग ऑन द डेवलपमेंट सो दैट more tourists can come and they can earn more, and economy wise they can be in a better state. So that's it. और यहाँ पे सारे बहुत ही खुश रहते हैं, like they are always happy, trying to be happy, and it's a lovely place and a lively place as well. कैसा लग रहा है? इसके ऊपर थिएटर है शायद, and we don't have that much time to roam around and see the whole place, but yeah, it looks nice, right? जितना भी दिख रहा है अच्छा दिख रहा है। आज के बाना हिल के टूर के बाद वी हैव जस्ट कम टू आवर होटल। अभी होटल के बाहर ही बैठे हैं। ये वाला रिवर है और इसके सामने ड्रैगन ब्रिज है, इसके सामने ही, तो इसके सामने ही बैठे हैं क्योंकि हमारे पास अभी बहुत टाइम है। अभी शाम का खाना खाना है एंड देन वी विल बी टूवर्ड्स द एयरपोर्ट, दानांग एयरपोर्ट। वहाँ से हमारा हानोई का फ़्लाइट है एंड देन फ्रॉम देयर बैक टू कोलकाता। एंड आज का दिन बहुत सही था। आज बाना हिल में बहुत ही मज़ा आया। इट्स अ रियली लवली प्लेस। अगर आप आ रहे हो तो आपको ज़रूर जाना चाहिए, राइट। ये अभी दुकान ढूंढ रहा है, मतलब यहाँ पे खाने वाला दुकान। एंड ये भी ढूंढ रहा है कि आसपास अगर कहीं बैंक टीपी अभी बैंक हुआ तो हम थोड़ा कैश भी विड्रॉ कर लें। लेकिन आज का दिन और वियतनाम का टूर सब कुछ मिला के अच्छा ही गया। वियतनाम एयरलाइंस ट्रैवल करने के बाद इंडिगो में जाना पड़ेगा। मतलब हाँ, वियतनाम एयरलाइंस बहुत ही सही है, बहुत ही सही है। लाइक हाँ, बहुत ही सही है। और उसके बाद मतलब लेग स्पेस बहुत अच्छा है, सीट्स बहुत कंफर्टेबल है। उसके बाद इंडिगो, सो इट्स गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट टाइम, बट नेवरदलेस इतना नहीं बोलना चाहिए, अपने देश का एयरलाइन है। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंटर ये है अबाउट वियतनाम, व्हाट आई रियलाइज कि हम लोग भी आने से पहले बहुत सारे ब्लॉग वगैरह रील्स ये सब फॉलो किए थे, पर नन ऑफ देम एक्चुअली मेंशन। सब बजट ट्रैवल का बता तो रहा था, बट यू विल बी मिसिंग आउट ऑन अ बिग पार्ट। अगर बजट ट्रैवल करोगे तो यू वोंट बी अंडरस्टैंडिंग द मेन हिस्ट्री, एथनिसिटी, कल्चर। इन सब का नॉलेज आपको अंदर से वो समझ नहीं आएगा। यू विल जस्ट लाइक वॉचिंग एनी अदर बिल्डिंग, क्लिकिंग पिक्चर्स। बट हाँ,
थोड़ा एक्सपेंस हो गया ज़्यादा, बट एट द एंड ऑफ द डे यू अंडरस्टूड व्हाट यू वाच, सो वैल्यू फॉर मनी था। So, yes. क्योंकि मैं समझाता हूँ क्यों ये पॉइंट बोल रहा है। जैसे कि पहला दिन हनोई का हमने खुद से घूमा था, हाँ, और उस दिन हम कहाँ गए थे, लिटरेचर टेम्पल ऑफ लिटरेचर। हाँ, टेम्पल ऑफ लिटरेचर। तो हमको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, हमने बस घूमा और पिक्चर खींचा, वीडियो लिया और चले आए। बट उसके बाद वाले दिन जब हम परफ्यूम पगोड़ा गए तो हमारा जो टूर गाइड था उसने हमसे पूछा, लाइक सबसे पूछ रहा था कि कौन कौन गया है। तो हम किसी ने बोला कि नहीं गए, तो हम ही थे जो हम मतलब गए हुए थे टेम्पल ऑफ लिटरेचर। तो हमने बोला, और उसने पूछा कि आपको पता है क्या है, तो हमने बोला नहीं, हम बस ऐसे ही गए। तो उसने बोला कि कैसे आप गए लेकिन आपको पता नहीं है। तो यही, अगर हम कोई मतलब टूर गाइड लेके जाते या कोई हमारे साथ होता है यहाँ का लोकल, तो हमको समझा सकता, हमको बता सकता, हमको मालूम चलता कि क्या है असल में। बट हाँ वही, अगर आप किसी के साथ आ रहे हो तो खास करके आप जब दूसरे देश में ही हो, हाँ, मतलब पहली बार, दूसरी बार हो या तीसरी बार हो, तब तक तो आपको समझ में आ जाएगा क्या। बट पहली बार के लिए आई हाईली रिकमेंड कि आप किसी के साथ ही जाओ, तो आपको ज़्यादा पता चलेगा और कल्चर के बारे में आपको ज़्यादा जानने को भी मिलेगा। आप अगर इधर आ रहे हो तो एक चीज़ के लिए रेडी रहो, मसाज बूम बूम। ये तो सब कोई पूछेगा आपसे, मतलब आप खड़े हो चाहे बैठे हो चाहे कुछ, तो रेस्टोरेंट में नहीं पूछता, बट हाँ रेस्टोरेंट के बाहर खड़े हो, कहीं भी हो, मौका मिले, कभी मौका मिले, कोई भी। ग्रैब वाले ज़्यादा पूछते हैं हनोई में भी, यहाँ पे भी। यहाँ पे तो टैक्सी वाले ने पूछ लिया हमसे। चलो अभी जाते हैं खाने के लिए। तो खाना वाना खा के हम लोग होटल से बैग लेके चेकआउट करके अभी गाड़ी में बैठ चुके हैं। वही गाड़ी आई है जो हमको लेने आई थी। एंड नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द एयरपोर्ट, द डोमेस्टिक एयरपोर्ट ऑफ दानांग एंड वियतनाम। सराब बेबी। इतने बड़े क्यू में आके खड़े हो चुके हैं और अभी लग रहा है कि अच्छा हुआ कि जल्दी आ गए, क्योंकि अभी बहुत टाइम लगने वाला है हमें। और इसके बाद सिक्योरिटी चेक भी होने वाला है, तो आई होप कि बैठने का टाइम भी नहीं लगेगा। तो थोड़ा बहुत डिले हुआ था फ्लाइट, और डिले होने के बाद अभी हम फाइनली फ्लाइट में बोर्ड हो चुके हैं और हम बोइंग कर रहे थे। अभी एयरबस मिला, फिर भी फैसिलिटीज़ ठीक ही है, बट एयर कंडीशन का जो वेंटिलेशन का जो ये होता है, ब्लोअर होता है, वो नहीं है बस। इसके अलावा गेम्स सीट वगैरह सब ठीक ही है। और लेट हुआ है, बेशक लेट हुआ है, 25 मिनट लेट हुआ है, 25 नहीं 35 मिनट लेट हुआ है। अभी बस यही है कि वहाँ पे हनोई में थोड़ा बारिश हो रहा है, तो हनोई में ठीक ठाक सेफ लैंडिंग हो जाए और वहाँ से हमको इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने के लिए बस मिल जाए। मतलब एयरपोर्ट सेम ही है, टर्मिनल अलग है बस, तो वो मिल जाए तो बहुत हमारे लिए। लेट्स प्रे ब्रदर, बस वहाँ तक पहुँचे बस। फिर तो इंडिगो का फ्लाइट भी हमारा डिले हो चुका है। चलो गाइस, बाद में। We have just landed in Hanoi domestic terminal नंबर T1। तो यहाँ पे बैगेज क्लेम का जो जगह है वहीं पे खड़े हैं हम। एंड इफ़ यू हैपन टू बी इन सेम सिचुएशन, बस बाहर जाना है, बाहर जाके आपको मिल जाएगा बस जो आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हाँ हनोई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वहाँ पे छोड़ देगा, विच इज़ टर्मिनल नंबर 2। और ये शटल वाला जो सर्विस है सुबह 6 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक चलता है, एवरी 10 to 15 मिनट्स। तो अभी हम वियतनाम में मसाज करा रहे हैं सिर्फ 20 डॉलर में, 20 नहीं मतलब 20,000। मज़ा आ गया भाई। कैसा लग रहा है? 30,000 से ज़्यादा स्टेप चले हैं हम लोग। तो बिना किसी लाइन के इमिग्रेशन से निकलते हुए हम लोग अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं। और इसके पहले का कोई फुटेज की इसलिए नहीं है क्योंकि हम दोनों बहुत टायर्ड थे, उसके बाद सो गए थे फ्लाइट में। तो
ऑफकोर्स, इसीलिए कोई फुटेज है नहीं। लेकिन फिलहाल तो हम कोलकाता आ चुके हैं। फुटेज हम लोग का ही बन गया है। वी आर बैक टू बेस। नींद चाहिए बस। घर जाएंगे, सोएंगे, आराम करेंगे एंड देन फिर से काम पे लग जाएंगे। एंड विद दैट सेड, इट्स अ रैप। Vietnam ends here. Until next time, next tour, we will see you again. And thank you for watching. If you have watched till the end, please do like, do share, do subscribe, and please hit the notification bell to get notified whenever I post a new video or anything on my channel. So thank you guys, thank you for watching, and bye, ciao. Bye.